Government textbook numerical, question number 1, sub question number 4, multiple choice question, sub question number 4. Four resistances 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 15 ohm form a Westone's network. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge? Option A 10 ohms, option B 15 ohms, option C 20 ohms and option D 30 ohms. तो इस क्वेश्चन में हमको एक विस्टोन्स नेटवर्क दिया है 4 रजिस्टर्स का एंड रजिस्टर्स आर 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms एंड 15 ohms. विस्टोन्स नेटवर्क का जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था तभी हमने रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 और R4 लेबल किया था. तो हियर R1 is 10 ohms, R2 is 10 ohms, R3 is 10 ohms and R4 is 15 ohms. Westone's network is said to be balanced when R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. This is called balance condition of Westone's network. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. But हमको जो Westone's network दिया है वो balance नहीं है. It is not a balanced network. Why? Because 10 upon 10, R1 upon R2, R1 upon R2 is 10 upon 10, and R3 upon R4 कितना हो गया 10 upon 50. But 10 upon 10, which is R1 upon R2, is not equal to 10 upon 15, which is R3 upon R4. So we say given network is not balanced. तो क्वेश्चन में बोला है what shunt is required across 15 ohm to balance the network. तो let that shunt resistance be X. Shunt का मतलब होता है low resistance connected in parallel. What is the meaning of shunt? Low resistance connected in parallel. Shunt होता है resistance connected in parallel. तो let X be the shunt resistance connected across 15 ohm to balance the network. तो इस Westone's network को बैलेंस करने के लिए हम लोग 15 ohms के साथ X resistance parallel में कनेक्ट करेंगे. So अभी इस ब्रांच में we have 15 ohm and X का parallel connection. तो पहले इसका effective resistance फाइंड करेंगे. तो effective resistance of 15 ohm and X will be RP. RP का मतलब effective resistance of parallel combination. It will be product upon sum. When two resistances are in parallel, formula क्या होता है? R1 R2 upon R1 plus R2. Product of the two resistance upon sum of the two resistance. ये हो गया equivalent resistance of parallel combination. तो RP होगा 15X upon 15 plus X. And then we apply the new balance condition. का मतलब X कनेक्ट करने के बाद न्यू बैलेंस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो. बिकॉज आफ्टर कनेक्टिंग X नेटवर्क बैलेंस हो चुका है तो नाउ वी कैन अप्लाई बैलेंस कंडीशन. तो न्यू बैलेंस कंडीशन होगा R1 upon R2 is equal to R3 upon RP. R1 upon R2 equals to R3 upon RP. And then we put the values. R1 10, R2 10, R3 10, RP 15X upon 15 plus X. सबसे पहले 10 और 10 को हम लोग कैंसिल करेंगे. So देखो this 10 and this 10 gets cancelled. ठीक है. तो फिर ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. तो we get 15x upon 15 plus x equals to 10. फिर इन दोनों को मैंने डिवाइड किया. 5 2s are 10 and 5 3s are 15. And then we cross multiply. So we get 3x. We get 3x equals to 30 plus 2x. Okay. And therefore x equals to 30 ohms. तो जो हमको शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था उसका आंसर हो गया 30 ohms. एंड 30 ohms ये ऑप्शन नंबर डी है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 5. तो वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यू नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू नंबर 5. A circular loop has a resistance of 40 ohms. 2 points P and Q of the loop, which are 1/4 of the circumference apart, are connected to a 24-volt battery having an internal resistance of 0.5 ohms. What is the current flowing through the battery? So इस क्वेश्चन में हमको एक सर्कुलर लूप दिया है. तो दिस इज सर्कुलर लूप ऑफ वायर.
और इस सर्कुलर लूप ऑफ वायर का टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम्स दिया है। फिर इस वायर के दो पॉइंट हमने कंसिडर करना है P एंड Q। तो P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द वायर which are 1/4 of the circumference apart। का मतलब इन दोनों के बीच का ये जो लेंथ होगा ये पूरे लूप का 1/4 होगा। 1/4 का मतलब 1/4। So these 2 points P and Q are 1/4 of the circumference apart। तो ये डिस्टेंस जो है और ये जो लेंथ होगा ये पूरे लूप का 1/4 पोर्शन होगा। फिर इस लूप को P और Q के पॉइंट के अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट किया है। इस बैटरी का EMF 24 वोल्ट है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स है। क्वेश्चन सेज फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी। तो वी वांट टू फाइंड करंट I जो पूरे सर्किट में भी फ्लो करेगा। नाउ सिंस दिस लूप इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q, उससे क्या होगा देखो, ये जो लूप है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एंड लूप अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इस लूप का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो लेट R1 बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लोअर पार्ट एंड लेट R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस अपर पार्ट। तो ये जो लोअर पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R1 डिफाइन करो। ये जो अपर पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R2। एंड नाउ वी हैव R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन P एंड Q। As resistance are in parallel, current will also get divided। तो सपोज PQ सेक्शन में का मतलब ये सेक्शन में करंट I1 फ्लो कर रहे हैं, इस सेक्शन में करंट I2 फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। नाउ R1 R2 का पैरेलल कनेक्शन को मैंने अलग से ड्रॉ किया। देखो तो इस सर्किट को मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से ड्रॉ किया। सो दिस इज रेजिस्टेंस R2 ऑफ द अपर पार्ट, दिस इज रेजिस्टेंस R1 ऑफ द लोअर पार्ट। तो अभी P और Q के बीच में हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 एंड दे आर इन पैरेलल। एंड इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक सेल कनेक्ट किया जिसका EMF E है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। I इज द करंट। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 40 होगा बिकॉज पूरे लूप का रेजिस्टेंस 40 ओम्स हमको दिया है। तो हियर R1 प्लस R2 इज 40 ओम्स। But R1 is a resistance of 1/4 of the length। ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये पूरे लूप का 1/4 लेंथ है एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये जो R1 होगा ये 1/4 ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस 40 है तो लेंथ अगर 1/4 है तो फिर रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो R1 होगा 1/4 ऑफ 40 दैट इज 10 ओम्स एंड R2 होगा, ये जो R2 होगा ये 3/4 होगा बिकॉज ये लेंथ होगा 3/4 तो रेजिस्टेंस भी होगा 3/4 ऑफ द टोटल। तो R2 होगा 3/4 ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, इसका मतलब R2 होगा 30 ओम्स। नाउ सिंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन P एंड Q, तो हम लोग फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q RP will be R1 into R2 upon R1 plus I2 because they are in parallel। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 का वैल्यू 10 है, R2 का वैल्यू 30 है, तो दिस इज 10 into 30 upon 10 plus 30। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40, तो 0 0 कैंसिल, 30/4, 30/4 होगा 7.5 ओम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड I2 RP कितना होगा 7.5 ओम्स। एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो current passing to the battery will be equal to EMF upon total resistance of the circuit। EMF upon total resistance of the circuit। EMF is E, total resistance होगा RP plus small r। EMF of the battery is 24 volt and small r is 0.5 ohms और RP अपना 7.5 था। तो 7.5 plus 0.5 that is equal to 8। तो 24 upon 8 that is 3 ampere। तो current passing to the battery या करंट पासिंग टू द सर्किट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of the left gap of a meter bridge। A resistance of 4 ohm is introduced in the right gap। What is the resistance of the bangle if the null point is obtained at 20 centimeter from the left end?
तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको दिया है, एंट्रेंस लेवल का एक क्वेश्चन है। एक सर्कुलर गोल्ड बैंगल है, लेट आर बी द रेडिस्टेंस ऑफ द गोल्ड बैंगल। हमको इस क्वेश्चन में रेडिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल पूछा है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आर। इस गोल्ड बैंगल को कनेक्ट करना है मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में। तो यहां मैंने एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का रफ डायग्राम ड्रॉ किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, दिस इज राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, दिस इज मीटर ब्रिज वायर। मीटर ब्रिज वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर, ये जॉकी है और यहां पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है। दिस इज पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। तो लेफ्ट गैप, राइट गैप, जॉकी, नल पॉइंट एंड दिस इज मीटर ब्रिज वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो आपने इस गोल्ड बैंगल को मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में कनेक्ट करना है एंड व्हाइल डूइंग द कनेक्शन आपने गोल्ड बैंगल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को यूज करना है। तो दिस टू पॉइंट्स आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द गोल्ड बैंगल। तो गोल्ड बैंगल इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, बट व्हाइल मेकिंग द कनेक्शंस वी हैव यूज्ड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। उससे क्या हुआ, दिस गोल्ड बैंगल इज डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स। बिकॉज ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स गोल्ड बैंगल इज डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स। एंड अगर ये 2 पार्ट इक्वल है तो फिर गोल्ड बैंगल का जो रेडिस्टेंस होगा वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो अपर पार्ट ऑफ द गोल्ड बैंगल विल हैव अ रेडिस्टेंस ऑफ r by 2 and lower part of the gold bangle will also have a resistance of r by 2 because total resistance r था, इसके 2 पार्ट हो गए r by 2। तो फिर लेफ्ट गैप में we have 2 resistances in parallel। लेफ्ट गैप में we have 2 resistances in parallel। अपर पार्ट का रेडिस्टेंस r by 2 है, लोअर पार्ट का रेडिस्टेंस भी r by 2 है। तो लेफ्ट गैप में 2 रेडिस्टेंस पैरेलल में है। देखो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट गैप का कनेक्शन देखो, दिस इज व्हाट वी हैव इन द लेफ्ट गैप। तो इन द लेफ्ट गैप वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। These are the 2 terminals of left gap. These are the 2 terminals of left gap, these 2 terminals. तो अपर पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस r by 2 है, लोअर पार्ट जो है उसका भी रेजिस्टेंस r by 2 है। तो लेफ्ट गैप में we have 2 resistances in parallel like this. Okay, so gold bangle is divided into 2 equal parts in the left gap, and there are 2 resistances each of r by 2 in parallel in the left gap. तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। r by 2 and r by 2 पैरेलल है, तो when 2 resistances are in parallel, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन सम। बट जब भी R1 R2 इक्वल होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब भी दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R by 2 हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में when 2 रेजिस्टेंस आर इक्वल, इफेक्टिव कितना होगा R by 2। तो फिर यहां पे each रेजिस्टेंस r by 4 है ना, तो इफेक्टिव कितना होगा r by 4। तो when 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, इफेक्टिव का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। एक पॉइंट याद रखो, when 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, इफेक्टिव होता है r by 2। तो यहां पे R1 R2 कितने हैं, r by 2 है ना, तो R1 भी r by 2, R2 भी r by 2, तो इफेक्टिव कितना होगा r by 4 हो जाएगा। मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस r by 4 है। इसका मतलब लेफ्ट गैप में टोटल रेजिस्टेंस r by 4 है। राइट गैप में, ये राइट गैप है, तो राइट गैप में 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और ये है नल पॉइंट। तो हमको बोला है नल पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये वायर का लेफ्ट एंड है, ये वायर का राइट एंड है। टोटल लेंथ ऑफ वायर हमको पता है 100 सेंटीमीटर, बिकॉज इट्स अ मीटर ब्रिज वायर। तो लेफ्ट एंड से नल पॉइंट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रिमेनिंग होगा 80 सेंटीमीटर। एंड देन वी अप्लाई द बैलेंसिंग कंडीशन। तो अप्लाइंग द बैलेंसिंग कंडीशन टू दिस मीटर ब्रिज सेटअप, लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप रेजिस्टेंस इक्वल्स टू लेफ्ट साइड लेंथ अपॉन राइट साइड लेंथ, x अपॉन r इक्वल्स टू lx अपॉन lr। तो r by 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20 by 80, ये हो गया बैलेंसिंग कंडीशन।
फिर इस 0 को कैंसिल कर लो और 2/8 को लिखो 1/4, फिर इस 4 के साथ भी कैंसिल कर लो, ठीक है, तो यहां पे बच गया 1, here we get 1 and यहाँ पे R/4, तो R/4 equals to 1, this implies R equals to 4 ohms, that means resistance of the gold bangle is 4 ohms। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, गोल्ड बैंगल का रेजिस्टेंस 4 ohms होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 10। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेन क्वेश्चन, उसका ये सब क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस प्रॉब्लम को हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करना है। लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. The combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. तो इस क्वेश्चन को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डायग्राम, दिस इज फर्स्ट बैटरी, this is second battery, they are connected in parallel और ये होगा external resistance। फर्स्ट बैटरी का EMF E1 4 वोल्ट, फर्स्ट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 is 1 ohm, सेकेंड बैटरी का EMF E2 is 1 वोल्ट, सेकेंड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 is 1 ohm। These two batteries are connected in parallel with their like poles together। देखो दोनों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने ज्वाइन किया। Now this two combination will send a current through the external resistance. So capital R is external resistance and the value of external resistance is 2 ohms. We want to find current passing through the external resistance. तो पहले current का distribution draw करते हैं। Let I1 be the current supplied by the first battery. Let I2 be the current supplied by the second battery. तो I1 current flow करके यहाँ पे आ गया, I2 करंट फ्लो करके पॉइंट बी पे आ गया, तो पॉइंट बी बन गया जंक्शन। तो यहाँ पे I1 I2 का एडिशन होगा एंड I1 प्लस I2 विल पास थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा I1 प्लस I2, ये हमको फाइंड करना है I1 प्लस I2। फिर ये I1 प्लस I2 रेजिस्टेंस R में से पास होके पॉइंट E पे आएगा, सो E विल आल्सो बिहेव लाइक ए जंक्शन। तो पॉइंट E पे वापस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, I2 current flows this way and I1 current flows this way। तो ये तो क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस लेबल पॉइंट्स A, B, C, D, E, F। इन पॉइंट्स को पहले लेबल करो। वी वांट टू फाइंड करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब हमको I1 प्लस I2 फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो न्यूमेरिकल होता है उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसमें एक स्टैंडर्ड स्टेप्स होता है। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर एनी टू क्लोज लूप बिकॉज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड टू अ क्लोज्ड लूप। तो आपको इस डायग्राम में कंसिडर करना है एनी टू क्लोज लूप एंड दोनों क्लोज लूप को किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। यू विल गेट टू इक्वेशंस, दिस टू इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनको सॉल्व करो। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा फॉर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कंसिडर एनी टू क्लोज लूप, apply Kirchhoff's voltage law, form equations, you will get two simultaneous equations and solve the two simultaneous equations to get the currents. So we will select two closed loop. Our first closed loop will be A, B, C, D, E, F, A. और ये होगा इस लूप का पाथ। तो ये जो मैंने आउटर बाउंड्री ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट लूप का मैंने पाथ ड्रॉ किया है। दिस इज पाथ ऑफ द फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप जो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं उसका पाथ मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। दिस लूप इज A, B, E, F, E और ये होगा सेकंड लूप का पाथ। ठीक है, तो मैंने दो लूप को सिलेक्ट किया, अभी मैं इन दो लूप को किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले कंसीडर क्लोज लूप A, B, C, D, E, F, A। तो लूप को ट्रेवल करो और समेशन E प्लस समेशन IR को 0 कंसिडर करो।
तो इस लूप में जितने भी ईएमएफ होंगे, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, उनका अलजेब्रिक सम ले लो. अप्लाई द साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली अप्लाई करो. वी हैव स्टडीड साइन कन्वेंशंस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो अगर आपको वोल्टेज लॉ के साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो पहले कन्वेंशंस रिफर करो एंड देन कम टू दिस न्यूमेरिकल. तो ए से बी ट्रेवल करो. पहले हमको ए से स्टार्ट करना ना, तो ए से बी, बट ए से बी तो कुछ नहीं है ना. देयर इज नो ईएमएफ, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. आगे बढ़ो. बी से सी में भी कुछ नहीं है. सी से डी. अच्छा, सी से डी के बीच में रेजिस्टेंस आर है और करंट I1 प्लस I2 है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. तो सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. नाउ अप्लाई साइन कन्वेंशन. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, when loop and current are in the same direction, potential difference is negative. तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू आर. ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, और ये निगेटिव है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ये निगेटिव क्यों है? बिकॉज करंट एंड लूप का डायरेक्शन सेम है. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, when current and loop are in the same direction, potential difference is negative. D से E कुछ नहीं है, E से F कुछ नहीं है, फिर F से A. F से A जब भी ट्रेवल करेंगे, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है और EMF भी आ रहा है. तो between F and A we have one potential difference and we have one EMF. Potential difference is I1 into R1. Apply the sign convention. Direction of loop and direction of current same है. इसका मतलब दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ I1 R1. नाउ कन्वेंशन ऑफ EMF. EMF का कन्वेंशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू पोटेंशियल डिफरेंस का कन्वेंशन. करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन. इस कंडीशन में EMF इज कंसिडर पॉजिटिव. तो यहाँ पे E1 इज पॉजिटिव, तो प्लस E1. लूप खत्म हो गया. वी हैव कम बैक टू A, सो दैट इज इक्वल टू 0. So this is Kirchhoff's voltage law applied to the loop A, B, C, D, E, F, A. अभी वैल्यूज को पुट करो and do some calculations. कैपिटल R का वैल्यू 2 ohms है, R1 का वैल्यू 1 ohm है, E1 का वैल्यू 4. ठीक है. So this is minus of I1 plus I2 into R which is 2, minus of I1 into R1, R1 का वैल्यू 1 है, plus E1, E1 का वैल्यू 4. Opening the bracket we get minus 2I1, minus of 2I2, minus of I1 plus 4 equals to 0. Minus 2I1 minus I1 becomes minus of 3I1 plus minus of 2I2 equals to, इसको मैंने यहां पे लिया minus 4. Multiplying minus 1 on both the sides we get 3I1 plus 2I2 equals to 4. तो this is equation 1 for first loop. अभी यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है सेकंड लूप के लिए. तो our second loop is A, B, E, F, A. This is our second loop. A, B, E, F, A. और ये होगा इस लूप का पाथ. अभी इस लूप को ट्रैवल करो और समेशन E प्लस समेशन IR को 0 इक्वेट करो. तो लेट अस स्टार्ट ट्रैवलिंग दिस लूप. A से B नथिंग, कुछ नहीं इसमें. B to E. If you travel from B to E, there is one EMF and there is one potential difference. B और E के बीच में एक EMF है और एक potential difference है. But E2 का जो करंट I2 है और ये जो लूप का पाथ है वो देखो एग्जैक्टली अपोजिट है. तो डायरेक्शन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज एग्जैक्टली अपोजिट. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस हैज टू बी नेगेटिव. तो इसको लिखा माइनस ऑफ E2. फिर I2 into R2, पोटेंशियल डिफरेंस I2 into R2. डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज एग्जैक्टली अपोजिट. इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. तो दिस इज प्लस I2 R2. एंड फिर हम लोग जाएंगे E से F. E से F तो कुछ नहीं है. फिर हम लोग जाएंगे F से A. F और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है I1 R1 और EMF है E1. This potential difference I1 R1 is negative according to sign convention. क्यों negative? Because current and loop are in the same direction. So when current and loop are in the same direction, potential difference is negative. तो इसको लेगा minus of I1 into R1. And E1. E1 has to be positive because current I1 and loop are in the same direction. So when current and loop are in the same direction, EMF is positive. तो इसको लेगा plus E1. लूप खत्म हो गया तो दिस इज इक्वल टू 0. तो दिस इज इक्वेशन फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप A, B, E, F, A. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. E2 का वैल्यू कितना है 1 वोल्ट. R2 कितना है 1, तो दिस इज I2. R1 कितना है 1, so this is minus I1. E1 कितना है 4 is equal to 0. सिंप्लीफाई करो तो दिस इज minus I1
प्लस I2, दिस इज +3, यहां पे चला गया तो -3. Therefore, I1 minus I2 is equal to 3, multiplying -1. Therefore, 2I1 minus 2I2 equals to 6. मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. I have multiplied 2 on both the side. तो this is 2I1 minus of 2I2 equals to 6. इसको हम लोग कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2. इसको हम लोग कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2. So now we have two equations, equation 1 and equation 2. Both are simultaneous equation. अभी इनको सॉल्व करना है और I1 I2 को फाइंड करना है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दे आर साइमल्टेनियस इक्वेशन. इनको सॉल्व करके I1 I2 फाइंड करना है. तो अभी इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास दो इक्वेशन थे, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 था, और इक्वेशन 2 था 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 6. तो इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 को फाइंड करना है. एडिंग द टू इक्वेशंस, अगर हम लोग दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस 2I2 माइनस 2I2 कैंसिल, 3I1 प्लस 2I1 becomes 5I1 and 4 plus 6 equal to 10. तो therefore I1 equals to 2 एम्पियर. तो करंट I1 पता चल गया 2 एम्पियर. सब्स्टिट्यूट I1 इन आइदर ऑफ दिस इक्वेशन, इसमें से किसी भी इस इक्वेशन में आप I1 को सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट I1 इन इक्वेशन नंबर 2. चलो हम लोग इक्वेशन 2 में उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये हो जाएगा 2 into 2 माइनस 2 into I2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, I1 को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो 4 minus 2I2 equals to 6. Therefore, minus 2I2 equals to 2. Therefore, I2 equals to minus 1 ampere. I2 कितना आ गया? minus 1 ampere. निगेटिव करंट, करंट निगेटिव आ गया. निगेटिव करंट का मतलब जिस डायरेक्शन में हमने I2 एज्यूम किया है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है. हमको पहले नहीं पता था कि I2 कैसे फ्लो करने वाला है, तो हमने I2 को एज्यूम कर दिया इस तरफ, पर एक्चुअल में I2 फ्लो कर रहा है ऐसे. एक्चुअल में I2 ऐसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट टू व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, एंड दैट्स व्हाई आवर करंट इज नेगेटिव. दैट्स व्हाई आवर I2 इज नेगेटिव. तो I2 नेगेटिव का मतलब I2 हमने ऐसे एज्यूम किया था, जबकि I2 ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, एंड नाउ करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज I1 प्लस I2. I1 कितना है 2, I2 कितना है -1, that is equal to 1 ampere. So this is our final answer. Current passing through external resistance is 1 ampere. So this is solution to question number 10. Question number 11 जो है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 11 ऑलमोस्ट सेम टाइप का है. इसमें सेम मेथड फॉलो करता है, सिर्फ E1 R1, E2 R2 एंड कैपिटल R के वैल्यूज चेंज होंगे, बट आपको मेथड सेम फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए. तो आई एम नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको सॉल्व करना है. तो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm? तो एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं. वोल्ट मीटर दिया है, दिस इज वोल्ट मीटर. लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर. इस वोल्ट मीटर को अपने सेल के अक्रॉस में कनेक्ट करना है. तो ये पूरा सेल का सिंबल हो गया. सेल का EMF E है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है. सो दिस इज कंप्लीट सिंबल ऑफ सेल. Now this cell is supplying current to this voltmeter and there is some potential difference across this voltmeter. Potential difference across voltmeter is same as potential difference across two terminals of the cell. तो हमको डेटा देखो क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर कैपिटल R. तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर कैपिटल R दिया 30 ohms. सेल का EMF E दिया है 2 volt एंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 10 ohms. We want to find reading in the voltmeter. का मतलब ये जो वोल्टमीटर है इसमें रीडिंग क्या होगा, इसमें पॉइंटर क्या डिफ्लेक्ट करेगा, क्या शो करेगा. तो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दैट इज V. Now according to Ohm's law, V equals to IR. According to Ohm's law, V is equal to I into R. पर हमको करंट तो पता नहीं है, बट इस टाइप के सर्किट में करंट होता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस.
याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो when we have sale and external resistance, when we are given sale and external resistance, then the current supplied by the sale is EMF upon total resistance. तो मैंने I को लिखा E upon R plus R, R plus R होगा total resistance, ठीक है। तो V equals to IR, I equals to E upon R plus R multiplied by capital R. Now let us put the values. E कितना दिया है 2, capital R is 30 divided by R plus small r, that is 30 plus 10. So this is 2 into 30 divided by 40. 0, 0 cancel. 6 by 4, 3 by 2, 1.5 volt. So potential difference across the cell, reading in the voltmeter is 1.5 volt. So this is solution to question number 12. Now in our textbook, there is one more numerical of the same type, and that is question number 20. तो textbook में question number 20 जो है, same type का question है. उस पर भी सेम कंडीशन दिया है, सिर्फ वैल्यूज चेंज किए हैं। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 20 बिकॉज टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल 20 इज सिमिलर टू न्यूमेरिकल नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करना है, मेथड सेम होगा, वैल्यूज चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 13, a set of 3 coils having resistances 10 ohms, 12 ohms and 15 ohms are connected in parallel. This combination is connected in series with the series combination of 3 coils of the same resistances. Calculate the total resistance and current through the circuit if a battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current. तो इस न्यूमेरिकल में हमको दिए हैं 3 रेजिस्टेंसेस 10 ohms, 12 ohms and 15 ohms. These 3 resistances are connected in parallel, and this parallel combination is connected in series with the same 3 resistance. तो ये 3 रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 10 ohms, 12 ohms and 15 ohm रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। बैटरी का EMF 4.1 वोल्ट दिया है, हमको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट। पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड करना है इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बिकॉज तीनों पैरेलल में है। तो 10 ohms, 12 ohms and 15 ohms are connected in parallel, so their equivalent resistance is 1 upon Rp equals to 1 upon 10 plus 1 upon 12 plus 1 upon 15. Therefore 1 upon Rp equals to 60 LCM होगा, तो we get 15 by 60, therefore Rp will be 60 by 15, that is equal to 4 ohms. तो इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ohms आ गया। Now 4 ohms, that is Rp, 10, 12 and 15, all of them are in series. तो next step में रेजिस्टेंस Rp, 10 ohms, 12 ohms and 15 ohms, they are in series. तो equivalent resistance RS will be equal to Rp plus 10 plus 12 plus 15. But Rp कितना था 4 ohms. So this is 4 plus 37, that is 41 ohm. तो total resistance of this particular circuit is 41 ohms. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो आंसर आ गया 41 ohms. सेकंड पार्ट में करंट फाइंड करना है, तो अप्लाई ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E is equal to current into total resistance. तो E equals to I into RS, because RS का total resistance. Therefore I equals to E upon RS. EMF is 4.1 volt and total resistance हमारा 41 था, तो 4.1 upon 41, that is 0.1 ampere. तो इस सर्किट का करंट कितना है 0.1 ampere. So this is solution to question number 13. Next question, number 14. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter and resistance of 10 ohm. It is connected in series with the cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohms. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. तो ये जो न्यूमेरिकल है, this is based on potentiometer experiment. ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर का प्राइमरी सर्किट। तो इस डायग्राम में AB होगा पोटेंशियोमीटर वायर,
ए बी होगा पोटेंशियोमीटर वायर, ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. लेट आई बी द करंट सप्लाइड बाय दिस सेल. तो पोटेंशियोमीटर को वायर का लेंथ दिया 1.5 मीटर, इसको लिखा मैंने सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर. तो कैपिटल एल होगा लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, आर होगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दिया है 10 ohms. तो कैपिटल एल लेंथ ऑफ द वायर, कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. ईएमएफ 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ohms. हमको फाइंड करना है पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर. इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर. पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, सेंटीमीटर इज लेंथ, तो हमको V अपॉन L पूछा है, एंड V अपॉन L होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका सिंबल होता है K. तो इन अदर वर्ड्स हमको फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर. सिंबल ऑफ पोटेंशियल gradient is K. So most of the problems of potentiometer are based on concept of potential gradient, and potential gradient K is V by L, उसका फॉर्मूला E into capital R upon L into R plus R भी होता है. वैल्यूज को पुट करो, E कितना है 4, रेजिस्टेंस R कितना है 10 अपॉन लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर. देखो मैंने लेंथ को सेंटीमीटर में क्यों लिया, बिकॉज मुझे चाहिए था पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर. That's why length is converted into centimeter. तो length is 150 centimeter, capital R is 10 and small r is 5. ठीक है, तो 4, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल. तो 4 upon 15 into 15 that is 225. ठीक है, तो this is 4 upon 225. मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया. तो this is 400 into 10 to minus 2 divided by 225. तो इसको 25 में डिवाइड करो, तो 25 को इससे डिवाइड किया तो 16 आ गया, एंड 225 को 25 से डिवाइड किया तो 9 आ गया. तो दिस इज 16 by 9 into 10 to minus 2. 16 by 9 is 1.77777 रिकरिंग, तो इसको मैंने 1.78 लिखा into 10 to minus 2. तो दिस इज 0.0178, और इसका यूनिट होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर. इस के का यूनिट होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ तो सेंटीमीटर में है, तो 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो ये हो गया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ohms and its length is 8 meter. A resistance box and a 2-volt battery are connected in series with it. What should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? तो ये प्रॉब्लम भी पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट का है. तो अगेन वी हैव केप्ट द सेम सर्किट. ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये हमने लिया है रेजिस्टेंस बॉक्स. आर एच होगा रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ohms, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 मीटर, EMF is 2 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया है तो नेग्लिजिबल, स्मॉल r को लेंगे 0. जब भी हमको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया होता है हम लोग उसको 0 कंसीडर करेंगे. पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको दिया है 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर. देखो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. 1 माइक्रोवोल्ट इज 10 to minus 6 volt, 1 millimeter is 10 to minus 3 meter. That becomes 10 to minus 3 volt per meter. हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, का मतलब हमको आरएच फाइंड करना है. तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के का फॉर्मूला E इंटू कैपिटल R अपॉन L इंटू R प्लस आर एच. एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो K का वैल्यू 10 to minus 3 है, E का वैल्यू 2 है, R का वैल्यू 8 है, L का वैल्यू 8 है, R का वैल्यू 8 है, स्मॉल r इज नॉट गिवन, तो इट इज 0 प्लस RH हमको फाइंड करना है. ठीक है, 8 और 8 गेट्स कैंसल. 10 to minus 3 is 1 upon 10 to 3, that is 1 upon 1000 is equal to 2 upon 8 plus RH. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 plus RH equals to 2000, therefore RH equals to 2000 minus 8, which is 1992 ohms. तो रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स का आंसर होगा
1992 ohms का मतलब 1992 ohms। तो ये हो गया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग तीन प्रॉब्लम एक साथ करेंगे बिकॉज तीनों प्रॉब्लम इजी है। 17, 16 और 15 दे आर ऑल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17। A potential drop per unit length along the wire is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. If the EMF of a cell balances against a length of 216 centimeter of this potentiometer wire, find the EMF of the cell. तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है 5 into 10 raised to minus 3, ये हो गया K का वैल्यू, और एक सेल का बैलेंसिंग लेंथ दिया है 216 सेंटीमीटर। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 2.16 मीटर बिकॉज K का वैल्यू मीटर में। तो बैलेंसिंग लेंथ L1 हो गया 2.16 मीटर, उस सेल का EMF फाइंड करना है। तो इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट EMF ऑफ अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला E1 इक्वल्स टू K इंटू L1। ये हमने थियरी पार्ट में भी देखा था, E1 इक्वल्स टू K इंटू L1। तो E1 हमको फाइंड करना है, K हमको दिया है, बैलेंसिंग लेंथ हमको दिया है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन 5 into 2.16 is 10.80 into 10 raised to minus 3, that is 0.01080 volt। तो सेल का EMF 0.01080 volt। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16 द EMF of a cell is balanced by a length of 120 centimeter of potentiometer wire. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohms, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of a cell. तो ये जो क्वेश्चन है, this is internal resistance of a cell in potentiometer experiment. तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बैलेंसिंग लेंथ L1 दिया 120 सेंटीमीटर when the cell is not shunted। फिर शंट रेजिस्टेंस 10 ohms दिया है, एंड शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर से रिड्यूस हुआ, इट इज रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। सो न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 इज 120 minus 20, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी वांट टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का फॉर्मूला कैपिटल R इनटू ब्रैकेट L1 minus L2 अपॉन L2। अगेन फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। कैपिटल R is 10, L1 is 120, L2 is 100 upon L2 is again 100. So 10 into 20 upon 100, that is equal to 2 ohms. So internal resistance of a cell is 2 ohms. Next question, number 15. In question number 15, when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on a potentiometer wire is found to be 2.7 meter. When the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 meter. Compare the EMF of the two cells. Now question number 15 is again another experiment of potentiometer, sum and difference method. Question number 15 is based on sum and difference method of potentiometer. L1 होता है बैलेंसिंग लेंथ when the cells are in assisting order, तो L1 दिया है 2.7 मीटर। L2 होता है बैलेंसिंग लेंथ when the cells are in opposing order, तो L2 दिया है 0.3 मीटर। We want to compare EMF of the two cells, का मतलब आपको E1 upon E2 फाइंड करना है। तो इन सम एंड डिफरेंस मेथड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? L1 plus L2 upon L1 minus L2। तो दिस इज सम एंड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला। E1 upon E2 equals to L1 plus L2 upon L1 minus L2। वैल्यूज को पुट करो, 2.7 plus 0.3 upon 2.7 minus 0.3। तो दिस इज 3 upon 2.4, that is 30 by 24, that is 5 by 4। 6 से डिवाइड करो, 6 5 6 4 दो, 5 by 4 and 5 by 4 is 1.25। तो EMF का रेशियो 1.25 होगा। तो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15।